ठीक है, अभी आई थिंक अभी सब सही है. लेट्स सी सब कुछ सही जा रहा है या नहीं. ओके ठीक है. So what we have done is we have seen the pH calculation for strong acid solution, strong base solution, mixture of strong acid solution, similarly mixture of strong base solution, and then we have seen weak monoprotic acid, right? So there was another case C which I have told you that if the concentration of CH3COOH solution is given as 10 to the power minus 5, ठीक है, 21 years. Okay, I forget. अभी मैं 2020 में ही चल रहा हूँ. So correct. So C over here is nothing but concentration of CH3COOH is nothing but 10 to the power minus 5, right? So if you are going to apply the alpha over here under root K divided by C, then you can see this value is going to be 2 into 10 to the power minus 5, and that is 10 to the power minus 5. So obviously it is root 2. So obviously this is alpha is greater than 0.1. So how we are going to solve? We'll apply the same. K is nothing but C alpha square 1 minus alpha. So we'll apply 2 into 10 to the power minus 5. It is 10 to the power minus 5 alpha square divided by 1 minus alpha. So this is going to cancel out. You can solve. So hence alpha square plus 2 alpha minus 2 equals to 0. And alpha is minus 2 plus b square, that is 4 plus 4ac, that is 8 divided by 2. So that is minus 2. 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 root 3 by 2. So that is nothing but root 3 minus 1. So that is nothing but 0.732 से 1.732 से 0.732. So alpha you will be getting 0.732. Now you can solve. You can say H plus ion concentration is nothing but C alpha, right? So what will happen? C is 10 to the power minus 5 into 0.732. So, okay, approximately I am taking 7.3 into 10 to the power minus 6. So just solve it and then you will get pH. pH is nothing but minus log H plus. So that is minus log 7.3 minus log 10 to the power minus 6. 7.3 का log कितना होगा? Log 7 is 0.845, 0.3. So I'm just writing approximately 0.86, let's say. ठीक है, just write it approximately. So then it is going to be 5.1. ठीक है, तो it is close to 5.14, 5.13 के आसपास आंसर आ जाएगा. तो this is okay. Now you can see over here the alpha is considerably high, है ना? Alpha कितना हो गया? 73% हो गया. So you can see as the dilution is increasing, alpha is keep on increasing. ठीक है, अब मान लो इसी में मैं डी बोलूं और डी में मैं बोलूं कि ये 10 to the power minus 6 है. अगर यहाँ 10 to the power minus 6 मोलर होता, ठीक है, तो फिर क्या होता? Obviously alpha is not going to be 0.1, so we can use k equals to c alpha square. One more quadratic we are solving. So this is 2 into 10 to the power minus 5. This is 10 to the power minus 6 alpha square 1 minus alpha. So when you are going to solve it, ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना. So this is going to be 20 and we can write alpha square minus, sorry, plus 20 alpha minus, right? This is going to cut. So over here, this is 10 is going to be here. Okay. Or you can say 10 to the power minus 1 here. So it will be 10. So 20 alpha minus 20 equals to 0. And then alpha is nothing but
-20 plus minus plus b square 400 plus 4ac that is 80 divide by 2, so that is -20 plus ये कितना हो जाएगा 480. 480 is किसका रूट होगा? अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास 22 होता है 484. So this I am writing 21.995 or 96 ऐसे करके कुछ आएगा. So I am writing 21.96 let's say divide by 2. So this is going to be 1.96 divided by 2, 0.98. So what we are able to understand is कि ये जब टेंस टू पावर -6 मोलर हो रहा है ना, 21.98 आ रहा है. So just write 98. I don't know, just check it and then you will get. So let's say 98 लिख ले, 0.99 आ गया. ठीक है. 2.1 21.90 आ रहा है. अरे भाई तुम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हो ढंग से. सही बताओ कितना आ रहा है? आर्या को भगा देता हूँ मैं. ये कौन है आर्या? ये गया. तो 21.908 आ रहा है. ठीक है. So let's say okay 21.90 लिख लेते हैं. So this is 1.90 0.95. That's it. ठीक है. Whatever. So what you can see is कि जब concentration टेंस टू पावर -6 मोलर पहुंच रही है या फिर जो Ka वैल्यू है उससे भी थोड़ा है ना कम हो रही है. Ka वैल्यू टेंस टू पावर -5 थी ना, तो C हमारी टेंस टू पावर -6 है. तो जब Ka वैल्यू से भी concentration कम हो रही है then this weak acid is approximately behaving because अल्फा क्या है 1 के आसपास है. So this weak acid is now behaving as strong acid. ये बात समझ में आ रही है? We can say alpha over here is alpha is approximately 1, hence है ना at this concentration weak acid is behaving as है ना behaving as strong acid solution. So what is going to be pH? तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ it is going to be close to 6 है ना. तो pH क्या हो जाएगा? That is going to be close to 6. Approximately that is going to be close to 6, right? तो this is what we want to understand कि जब भी concentration आपके Ka वैल्यू से और कम हो रही है, right? Then अल्फा जो है ना वो आपका right 1 की तरह अप्रोच करने लग जाएगा. 1 की तरह अप्रोच करने लग जाएगा. At that level you can say this weak acid solution is going to behave as approximately like strong acid solution. 6.02 नहीं आएगा, 6 से थोड़ा सा कम आएगा ना, 5.98 समथिंग आएगा. इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, राइट? पहली चीज. तो ये तो कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे. एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्या? अगर बेन्स है तो ले सकते हैं, एडवांस है तो नहीं ले सकते हैं. अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, सॉरी मल्टीपल कह रहा हूँ, सिंगल वो भरना है आपको, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आप नहीं ले सकते. क्या किया है? सेम काम किया है. यहाँ पे हमने जैसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व की थी वैसे ही हमें करना है. सो आई वांट यू टू सॉल्व बाय योरसेल्फ कि ये कैसे हो रहा है. ठीक है. अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में मतलब इसी तरह के क्वेश्चन में अगर हमने NH4OH ले लिया होता विच इज बिग बेस.
राइट। तो क्या हम पीएच निकाल सकते हैं? फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, राइट, सेम फॉर्मूला। वहां पे क्या हो जाएगा, बस के बी डॉट सी हो जाएगा, अंडर रूट के बी डॉट सी। ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बी डॉट सी, पहले वाले सिनेरियो में। दूसरे वाले सिनेरियो में ऐसे ही आप लिखोगे सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो बस इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट केस यही है ना, राइट। तो अगर हम एसिड वाले केस को पढ़ लेंगे तो बेस वाले अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से फोर्थ केस ये हो गया, है ना, मोनो एसिडिक weak base solution. So monoacidic weak base solution example, we can say NH4OH, right? We can say LiOH. We can say aniline, let's say, kind of, ठीक है, और pyridine, etc. All these are the example. So we will focus on this one. This is the most important one, NH4OH. ठीक है. What will happen here? NH4OH is going to break as NH4 plus OH minus. T equals to 0 पे C 0 0, C minus C alpha C alpha C alpha, this is KB. So what is going to be KB? KB is nothing but C alpha into C alpha divided by C alpha C alpha divided by C 1 minus alpha. So C cut हो जाएगा, then it is nothing but C alpha square 1 minus alpha. Again case है ना, condition 1, if alpha is less than 0.1, 1 minus alpha is nothing but 1, KB is nothing but C alpha square, so hence alpha is nothing but under root KB by C. Same formula hai, but just I am writing again. And OH minus ion concentration is nothing but C alpha, is nothing but under root KB dot C. ठीक है, अगर हमें POH निकालना होगा, then we will say POH is nothing but half, directly I am writing the formula PKB minus log C. So this is condition 1. Condition 2 is simple, है ना, solve quadratic. If alpha is greater than 0.1, so KB equals to C alpha square 1 minus alpha. Solve quadratic. ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किया ये हमने? जो लोग आज आए हैं, कल वाली क्लास में नहीं थे, हाथ दो। कल वाली क्लास में नहीं थे। सुशील, तुम कल वाली क्लास में नहीं थे? हाँ, तो जिनको ये बातें नहीं समझ में आ रही, उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या किया है मैंने। ठीक है, देखो शुरुआत में कंसंट्रेशन C है 0 0, ठीक है। इनिशियली तो ये ब्रेक हुआ नहीं है, फिर मान लो ये ब्रेक हुआ C अल्फा अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले पढ़ाया था, राइट? ठीक है, याद है? तो C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा बना, ये C अल्फा बना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, लाइक दैट। नाउ वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है तो हमने मान लिया 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे लिखा है 92 तो हमने उसे 100 मान लिया, राउंड ऑफ, ऐसे, है ना? वैसे ही है, अगर ये अल्फा 0.1 से कम है तो वी आर गोइंग टू से दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो केबी की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन यू आर गोइंग टू, है ना, ये केबी बाई C और इसका रूट ले लेंगे। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल दी तो C इंटू के बी बाई सी, तो C अंदर चला जाएगा तो के बी डॉट सी। ठीक है, बस इतना ही कर रहे हैं।
जैसे हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं बस वैसे ही लिखना है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, NH4OH ब्रेक कर लिया है ना, वीक है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगेगा ही, पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ जो समझाया था, ठीक है। C00 C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा बन गया, राइट, इतना ये टूटा, इतना ये बना, केबी का एक्सप्रेशन लिखा, उससे ये केबी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, अगर अल्फा 0.1 से कम है तो मान लेंगे दैट इज नेग्लिजिबल, दैट वी आर राइटिंग की अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं, और 1 10 द 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बट इक्वल्स टू अल्फा। नाउ यू जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला, केबी क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज गोइंग टू बी अंडर रूट केबी बाई सी, क्योंकि ये सी नीचे की तरफ जाएगा, देन यू विल टेक रूट, ठीक है। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज सी अल्फा, so you will put the value of alpha over here to c root kb by c, तो कट, मतलब ये c अंदर जाएगा रूट के अंदर, तो c कट जाएगा, है ना, ये अंदर जाएगा तो कैसे बनेगा, c स्क्वायर बनेगा, तो ये एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है kb डॉट c स्क्वायर बाई c, तो ये कट गया, राइट, सो लाइक दैट। बस POH ले लिया, इसका लॉग ले लिया आपने, तो इससे आंसर आ गया। कंडीशन 2 क्या है, अल्फा 0.1 से बड़ा है तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना, वी कैन नॉट राइट 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, so then we have to solve quadratic according to, है ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे रूट, है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, आपको एक और बात याद रखनी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइंड pH ऑफ, है ना, 0.1 मोलर NH4OH solution, and given that Kb equals to 2 into 10 to the minus 5, तो ये बात याद रखनी है, Ka of CH3COOH and Kb of NH4OH is exactly same, उनकी वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है, एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.8 into 10 to the minus 5, राउंड ऑफ करके मैंने 2 into 10 to the minus 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो उससे फायदा क्या, आपको POH एकदम से पता चल गया, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं CH3COOH के केस में। बताओ भाई क्या आएगा आंसर, so I got one answer, बट प्रियंका ये पीएच पूछ रहे हैं, है ना, बेस के लिए पीएच थोड़ा दिमाग लगाना है ना, बेस के लिए पीएच 7 से ज्यादा ही होगा, so if you are making that mistake that means आपने POH निकाला है, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से काफी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि pH ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH, तो वो आया था 2.85, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एनीवे आई विल सॉल्व कि कैसे हमने निकाला है, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज रूट Kb डॉट C, so we'll write 2 into 10 to the minus 5 into 10 to the minus 1, so that is nothing but root 2 into 10 to the minus 6, you will take outside 10 to the minus 3 into root 2, so POH is nothing but minus log H plus, sorry, OH minus, so that is nothing but minus log 10 to the minus 3 minus log root 2, so this is 3, this is minus 1 by 2 log 2, 3 minus 1 by 2 into 0.3, so which is 2.85, ठीक है। ये तो आ गया POH, H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 14 minus 2.85, that is 11.1, समझ में आ गया किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये हो गए वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, तो क्या क्या कर लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कर लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड में डायरेक्टली आपको
H प्लस की टोटल कंसेंट्रेशन निकालनी है और सॉल्व कर लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया। फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो उसमें M1B1 प्लस M2 करके निकालना है। ठीक है, फिर हमने वीक एसिड कर लिया और वीक बेस कर लिया, इतना हम अभी कर चुके हैं मोनोप्रोटिक। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट केस है, अगर हमने पॉलीप्रोटिक वीक एसिड लिया हुआ है ना। नेक्स्ट केस, हाँ हेलो, हाँ बताओ। सर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे ना टेम्परेचर, ताकि हमें पता चले कि pH प्लस pOH 14 ही होगा। वैसे स्पेसिफाई करते हैं, नहीं अगर कहीं नहीं किया है तो 25 डिग्री मान लेना है, ओके सर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर उन्हें कोई और टेम्परेचर देना होता है तो फिर वो इस जरूर स्पेसिफाई करते हैं, यस सर, है ना। समझ गया। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो अगर मान लो हम पॉलीप्रोटिक वीक एसिड लेते हैं, ठीक है, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, बताओ भाई एग्जांपल लेट्स से, जल्दी जल्दी देखें कितने लोगों को याद है। कुछ याद नहीं, बेकार। ओके, करेक्ट करेक्ट, 2 आंसर आए बस। ओके, सो पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के एग्जांपल क्या हो गए, एक्चुअली H2S, H2CO3, H2C2O4, H2C2O4 मतलब ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, then we can say H3PO3, H3PO4 kind of, etc. These are the common ones. H2SO3 है ना, ये सब आप लिख सकते हैं, राइट। So these are the common one. अब इसमें अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ H2S का, ठीक है, या H2CO3 का। H2CO3 अपनी बॉडी में रहता है, राइट। CO2 हम लेते हैं, निकालते हैं, राइट। O2 लेते हैं तो कंबशन होता है, अपने ब्लड में थोड़ा सा, है ना, CO2 जो है डिसॉल्व रहता है हल्का हल्का, ठीक है, अपनी बॉडी में इन ब्लड। तो वी आर हैविंग H2 CO3 and HCO3 minus ion in our blood. वो तो उस पे आएंगे, ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन, बताएंगे आगे। एनीवे, सो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेट्स से H2CO3। तो H2CO3 का एग्जांपल है, तो ये कैसे टूटेगा, पहले ये एक H प्लस देगा, so then it will become HCO3 minus. This is I am writing Ka1, ठीक है। Then this HCO3 minus is give going to give H plus ion to form CO3 2 minus, ठीक है। So there are simultaneous equilibrium of two acids, यहाँ पे क्या आ जाएगा Ka2, इसको Ka1 is first dissociation constant, Ka2 is second dissociation constant, है ना। क्या बोल रहे हैं, Ka1 is first dissociation constant of H2CO3, Ka2 is second dissociation constant of H2CO3, or you can say first dissociation constant of HCO3 minus. So we are not writing that, ठीक है, ये H2CO3 के कंपैरिजन में सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। HCO3 माइनस के लिए तो पहली बार ही टूटेगा ना, देन इट विल बी Ka1 ऑफ HCO3 माइनस आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है।
एनीवे इतनी बात समझ में आ रही है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा, दोनों H प्लस देंगे, है ना। पहले जैसे ही ये बना इसमें टूटा तो ये भी टूट सकता है आगे, लाइक दैट। सही है, हाँ ना कुछ बोलो, समझ में आया? यस, ठीक है। नाउ t इक्वल्स टू 0 पे लेट्स से अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम वो यहाँ फिर से लगाएंगे। सो दैट इज C मान लो 0 0, C पहले एक का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे फिर दूसरे का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे। मान लो C अल्फा 1 है ना, मान लो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, C माइनस C अल्फा 1, सो वी आर सेइंग कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा 1, यहाँ C अल्फा 1 बन गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या है ये C अल्फा 1 0, क्या बनेगा यहाँ पे C अल्फा 1। अच्छा C अल्फा 1 को अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट अज्यूमिंग एज, लेट्स से ये यहाँ पे लिखा है X या A लिखा है, ठीक है। just assume C alpha 1 is nothing but written as A। अगर A लिखा होता तो हम इसमें ऐसे इक्विलिब्रियम क्या लिखते, A माइनस A अल्फा, है ना, ऐसे लिखते ना, A माइनस A अल्फा। तो अब यहाँ पे अल्फा क्या है, लेट्स से अल्फा 2 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A इज नथिंग बट C alpha 1, we will write this is going to be C alpha 1 minus C alpha 1 alpha 2 A alpha 2, right? Then what is going to form, यहाँ पे C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 and this is C alpha 1 alpha 2, ठीक है। तो टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, अब दोनों जगह सेम लिख लेंगे, दैट इज नथिंग बट C alpha 1 alpha 2 which can be written as, ये तो जाएगा C1 minus alpha 1, this can be written as C alpha 1 1 plus alpha 2, this can be written as C alpha 1 1 minus alpha 2, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये क्या किया है मैंने, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, देखो ये C था, पहले साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो एक इक्विलिब्रियम के बाद दूसरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे, तो C 0 0 C माइनस C अल्फा 1, यहाँ C अल्फा 1 आया, यहाँ C अल्फा 1 आया, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, फिर हमने इसको एस्टेब्लिश किया, तो यहाँ C अल्फा 1 है ना, ये C अल्फा 1, राइट, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी इसको भी लिख देंगे, इसको ये भी चेंज हो जाएगा ना, HCO3 माइनस कंसंट्रेशन, so then it is going to be C alpha 1 alpha 2 which is C alpha 1 1 minus alpha 2, ठीक है। कहाँ पे एडिशन क्यों किया, अरे ये और H प्लस आई ना, इससे आए H प्लस C अल्फा 1 इस पहले वाले इक्विलिब्रियम से, दूसरे वाले इक्विलिब्रियम से H प्लस आए C अल्फा 1 अल्फा 2, है ना, वो मैंने आपको बताया था, C अल्फा 1 को A मान के समझो तो ये क्या होता है A माइनस A अल्फा 2, यहाँ क्या बनता है C अल्फा 1 प्लस A अल्फा 2, यहाँ पे क्या होता है A अल्फा 2, तो A की जगह C अल्फा 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा बिकॉज नाउ दिस बिकम्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, ये बात सबको पता है। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, तो इसके ये पहले ही वीक है। अच्छा, बिटवीन ऑलवेज रिमेंबर बिटवीन K1 एंड K2 K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2, ठीक है, तो ये भी याद रखना है ना, सिंस K1 is always greater than K2, ठीक है, always this is always going to be much greater than K2, right, ठीक है। तो पहले यही पहले बहुत कम टूट रहे हैं, फिर इससे जो बन रहा है उसका फर्दर डिकम्पोजिशन कम हो रहा है, और यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा 2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है,
क्या होगा, अल्फा 2 की वैल्यू और भी बहुत कम हो जाएगी. So this is the approximation we are using since K1 is greater than much greater than K2. Hence, we will assume no, or we can neglect we can फिर से सुनो, right? Yes. फिर से सुनो, K1 और K2 में K1 हमेशा ज्यादा रहता है K2 से, ठीक है, right? Now ये जो K2 है ना, ये पहले से ही कम है और यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है क्योंकि H प्लस इससे आ रहे हैं. तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा, मान लो केवल ये HCO3 माइनस होता. HCO3 माइनस कैसे आ सकता है, मान लो हमने NaHCO3 पानी में डाला होता, ठीक है, rather than adding H2CO3 we have added NaHCO3, तब HCO3 केवल अकेला होता माइनस, है ना, this would have been right. तब हम H प्लस जो है वो HCO3 माइनस से ही आ रहा होता, राइट. हम इसकी बात कर रहे होते, बट ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस केस, इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन आयन है, तो जो ये अल्फा 2 आ रहा होगा वो और भी कम आएगा, है ना. मतलब अगर इंडिविजुअल अल्फा 2 आता, HCO3 माइनस पानी में होता, और यहाँ पे जो आ रहा है अल्फा 2, वो ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा 2 कम होगा. So that's why we can neglect alpha 2 straight away. You can say कि we can neglect alpha 2. Hence, 1 minus alpha 2 is also equals to 1 and 1 plus alpha 2 is also equals to 1. क्या हो जाएगा? H2CO3 which we have written like H plus plus HCO3 minus, है ना? Then at T equilibrium, what are the concentration we can write? So we can write over here C1 minus alpha 1. We can write over here H plus ion की concentration, अगर हम 1 plus alpha 2 को neglect कर देंगे, then this is going to be C alpha 1. Going to be C alpha 1. तो H plus की total concentration क्या आ गई? C alpha 1. यहाँ पे HCO3 minus का जो लिख रहे थे वो C alpha 1, H plus ion की concentration C alpha 1 plus CO3 2 minus ion की concentration C alpha 1 alpha 2. यहाँ पे तो है ना, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अल्फा 2 क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 के कंपैरिजन में अल्फा 2 कम है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट हियर, है ना, ये याद रखना. आई एम नेग्लेक्टिंग, सो 1 plus alpha 2 is 1. इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी इतनी बात समझ में आई? और ट्रिकी है ना. सर आपने बिगिनिंग में एक स्टेटमेंट बोला कि Ka1 is always greater than Ka2. तो उसका थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. इसको इस तरह से देख लो, उल्टा बताओ CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस में कौन अच्छा बेस होगा? किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? CO3 2 माइनस. बस इससे देख लो, स्ट्रॉन्गर बेस वीकर एसिड. वीकर, ओके, ठीक है, समझा. थैंक यू. और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नाउ वी कैन अप्लाई वेरी सिंपली. फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी. बाकी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 आ जाएगा बस. हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है ना K डॉट C वाला, वहां पे K1 आ जाएगा बस. तो देख लेते हैं क्या है. K1 क्या हो जाएगा? K1 is nothing but C alpha 1 dot C alpha 1 divided by C 1 minus alpha 1. So that's it. C कट जाएगा मान लो, तो फॉर्मूला बना Ka1 equals to C alpha 1 square 1 minus alpha 1. ठीक है. अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन है ना, कंडीशन 1 and 2. If alpha 1 is less than 0.1, ठीक है, जो कि 95% केसेस में होता है, राइट. तो अगर ये 0.1 से कम है तो क्या हो जाएगा, K1 equals to C alpha 1 square
अल्फा 1 is nothing but under root k1 by c. Yeah. But what is H plus ion की concentration? H plus ion concentration is going to be C alpha 1, which is nothing but C alpha k1 by c. So this is nothing but under root k1 by c. तो वहां पे फॉर्मूला क्या आ रहा था? k dot c, root k dot c, root k dot c, है ना? यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है? root k1 dot c. ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ, k1 minus dot c. ठीक है, अब यहाँ नेग्लेक्ट कर दो रहे ना सुशील, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया ना, वी आर नेग्लेक्टिंग. अच्छा, नेग्लेक्ट कब करते हैं? जब एडिशन हो रहा है. जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 10 to power -5, मैं कह सकता हूँ 1 plus 10 to power -5 is 1, है ना? ये एक तरह से ऐसा लिखा है ना 0.00001, then I can say okay this is 1, या फिर 1 minus 0, है ना? कहीं पे लिखा है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 into 10 to power -5, तो कैन बी राइट इट इज 2, क्योंकि हमने ये नेग्लेक्ट कर दिया नहीं ना. तो आपको ये याद रखना है, जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहां पे हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया. कंडीशन 2, फिर सिमिलरली आपको पता ही कंडीशन 2 में क्या करना है. ठीक है, सॉल्व क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो अब जैसे ही मुझे अल्फा 1 पता चल गया, देन कैन आई से, है ना, कैन आई से व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion C alpha 1? कैन आई से व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 minus ion, that is C alpha 1? What is the concentration of CO3 2 minus ion? ठीक है, CO3 2 minus ion की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे, मान लो हमें क्या पता चल गया, हमें सॉल्यूशन में एग्जैक्टली पता चल गया कि किसकी कंसंट्रेशन क्या है. हम H2CO3 की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे यूज करेंगे Ka2, राइट, in this part. So concentration of CO3 2 minus will be यहाँ पे. So we will use Ka2. Ka2 is nothing but H plus ion concentration, CO3 2 minus ion concentration divided by HCO3 minus ion concentration. तो यहाँ लिख लेंगे C alpha 1 dot C alpha 1 alpha 2 divided by C alpha 1. ये कट जाएगा, दोनों ही C alpha 1 है अप्रोक्सीमेटली. तो क्या मिला यहाँ से? Ka2 equals to C alpha 1 alpha 2, which is nothing but CO3 2 minus ion concentration. तो एक तरह से आपको क्या पता चल गया? CO3 2 minus ion की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली Ka2 के बराबर होगी. ठीक है, कोई अगर पूछना चाहे अल्फा 2 क्या होगा, व्हाट इज अल्फा 2? अल्फा 2 हो जाएगा K2 by C alpha 1, which is nothing but Ka2 divided by H plus ion concentration, which we have already calculated. तो अल्फा 2 निकाल देंगे. ठीक है, अब ये पूरा आप लिख लो, इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो इधर का दिखाओ, इधर का दिखाओ.
पहले ये देख लो अच्छे से नीचे। अच्छी बात यह है कि हमें एक नया फॉर्मूला याद नहीं करना है, राइट, क्योंकि फॉर्मूले में बस K1 आ रहा है। वही 91% आएगा, 95% तक वही केसेस रहते हैं, जनरल केसेस हैं वो। ठीक है, इसमें और कोई डाउट? नीचे भी देख लो इधर, जिन लोगों का इधर छूट गया हो। तो अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक बस हमने केवल एक नया फॉर्मूला पढ़ा है, एक ही नया फॉर्मूला पढ़ा है, वो है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज अंडर रूट K.C। ठीक है, वीक एसिड के लिए। पॉलीप्रोटिक के केस में K1.C आ जाएगा। जब हमें वीक एसिड का पता है तो वीक बेस का भी पता चल जाएगा। तो अभी तक केवल एक ही बस फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। पहले जो था मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला फॉर्मूला जो था, वो तो हम पहले पढ़ चुके थे, N1M1V1 प्लस N2M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेट्स से टेक अ पोल, कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? लेट्स से, है ना, से यस, से नो, राइट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें केसेस आएंगे बहुत सारे, है ना, ऑब्वियसली, सो देयर आर गोइंग टू बी सम कंडीशन, ऑल दोस थिंग। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। बट अगर आप फॉर्मूला देखो, जो 95% केसेस होते हैं, जो जनरल केसेस हैं, उनमें एक ही फॉर्मूला है ना। कुछ जगह एक आध दो कंडीशंस हैं, वो याद रखनी है थोड़ी बहुत, राइट। बट अगर हम पीएच का फॉर्मूला देखें तो वो ज्यादा नहीं है, जितने भी अभी तक हमने केस पढ़े उन सब में। ठीक है, सो ओके, दैट्स इनफ। लगभग 86% लोगों को आ रही बातें समझ में, सो वेरी गुड। जिनको नहीं आ रही वो कीप आस्किंग। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए डिफिकल्ट लगता है जब आप इसको अलग अलग समझने की कोशिश करते हो। आप इसको बिल्कुल मैच करा लो, सिमिलैरिटी देख लो, तो आपके नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए मैं हर कंडीशन को बार बार बता रहा हूँ, सो दैट रिवीजन होता रहे आप लोगों का, है ना। मैं बार बार लिख रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। कई बार आपको लग रहा होगा कि सर ने वही चीज बार बार वापस लिख दिया, लेंदी बता दी। डोंट वांट टू मिस एनी स्टेप, कि जिसको एक बार में मान लो स्किप हो गया, वो दूसरी बार में समझ के फिर उसको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो अब आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। फाइंड pH of 0.1 molar H2S solution given that, है ना, K1 equals to 10 to power minus 7, K2 equals to 10 to power minus 14 B. Also find alpha 1, alpha 2 and concentration of H2 minus। ठीक है, ये सब बता रहे हैं।
अभिनव, H2S इज एसिड और बेस, आप लोग अभी तक यही नहीं देख पा रहे हो। पीएच है ना, एसिड है बेस है, क्या है, कहाँ क्या लगाना है? तो कई लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते, ये कॉमन सेंस है ना, एसिड है तो 7 से कम आएगा। अगर आपका आंसर 7 से ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने कुछ गलत किया है, राइट। ऐसे ही बेस है तो आपका 7 से ज्यादा आएगा। ठीक है, सो यू कैन सी कि अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत कम आ रही है, राइट। सो वी कैन नेग्लेक्ट अल्फा 2 अल्फा 1, करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमने आंसर हमारा आया अंडर रूट के वन डॉट सी से, वो सही है, हमें कुछ क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व नहीं करनी है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पे है, जब तक कुछ टेम्परेचर ना लिखा जाए, you just assume 10 to power minus 14, that is kW, 25 डिग्री सेल्सियस पे सब कुछ। सो लेट्स सी, पहला तो हम कहेंगे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नथिंग बट अंडर रूट K1 डॉट सी। तो आप लिख लो यहाँ पे 10 to power minus 7 into 10 to power minus 1, which is root 10 to power minus 8 or 10 to power minus 4. So pH is nothing but straight away 4. फिर अल्फा वन इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, रूट K1 by C. So that is 10 to power minus 7 divided by 10 to power minus 1, so 10 to power minus 3. तो ये समझ सकते हो कि अल्फा 1 भी बहुत छोटा है। व्हाट इज अल्फा 2? अल्फा 2 कितना हो जाएगा, K2 डिवाइड बाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन, K2 10 to power minus 14 divided by 10 to power minus 4, so 10 to power minus 10. So you can see कि ये तो बहुत ही कम है। What is CO3 sorry sulfide 2 minus ion concentration, which is nothing but K2 10 to power minus 4. ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन में अगर मान लो H2S हमने डाली है, तो है ना, H2S we have added, let's say, and this solution is 0.1 मोलर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि pH क्या होगा इसका, है ना, हमको पता चल गया H2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमको पता चल गया HS माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर कोई भी पूछेगा तो इसके बारे में सब बातें पता चल गई, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं, राइट, नेक्स्ट लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। राज बेटा हमने ये बताया ना अभी, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट Ka2, तो H प्लस और HCO3 माइनस ये कट गया, राइट, बिकॉज बोथ आर Ca1 C अल्फा 1। तो जो CO3 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन है, जस्ट डोंट पुट द वैल्यू, जस्ट थिंक ओवर हियर, ये इससे कट गया, CO3 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या आई, Ka2, बस डायरेक्टली। Let's see, okay, now we will talk about mixture of strong acid and weak acid, ठीक है। let's say what is the case, ऐसे ही हम पॉलीप्रोटिक पॉली एसिडिक सॉरी बेस के बारे में बात कर लेंगे, राइट। जैसे कहीं पे लिखा है MgOH होल ट्वाइस, ऐसा कुछ भी रहेगा तो वहां पे भी यही फॉर्मूला लगाना है सब जगह, राइट। so I am not writing that case, ठीक है। जो हम एसिड के लिए बात कर रहे हैं, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर बेस, ठीक है। 5 हो गया, 6। let's say mixture of strong acid and weak acid। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है। so let's say example, let's say I will say कि HCl plus CH3COOH टाइप, ठीक है।
मान लो HCl की कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl तो पूरा टूट जाएगा 100%, राइट? So that is going to give you H plus plus Cl minus. That means initially अगर ये C1 होगा तो ये C1 मिल जाएगा, H plus आएंगी, तुरंत जो कंसंट्रेशन होगी वो C1 मिल जाएगी HCl से। CH3COOH पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, राइट? CH3COOH से जितने H plus आने चाहिए थे उससे कम ही H plus रिलीज होंगे, राइट? So let's see. इक्वल्स टू 0 पे ये C2 है, यहाँ से ये 0 है और ये C1 है, C2 माइनस C2 अल्फा, C2 अल्फा, C1 प्लस C2 अल्फा, ठीक है? अब ये हमारा ऐसे बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से ये दिस इज K, इसके लिए तो K आएगा नहीं, केवल इसी का K आएगा जो भी आएगा, राइट? C2 अल्फा इससे मिला ना, कितना टूटा ये C2 अल्फा, तो C2 अल्फा से ये क्या बनेगा C2 अल्फा, ये क्या बनेगा, ये C1 पहले से ही था, C2 अल्फा और आ गया तो C1 प्लस C2 अल्फा। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो अल्फा तो 1 से कम होगा ही होगा, राइट? तो जनरली इन ऑल दोस केसेस यहाँ पे कंडीशन की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अल्फा है ना, वी कैन राइट वन माइनस अल्फा इज नथिंग बट अल्फा, सॉरी इक्वल्स टू 1, ठीक है? कॉमन आयन इफेक्ट है, पहले ही ये कम टूटता है, वीक एसिड है, HCl और प्रेजेंट है तो अल्फा कम हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द assumption वी आर टेकिंग। बस हो गया अब आपका, तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन C2 अल्फा डिवाइड बाय C2, ठीक है? So this is going to be, let's say over here we can cut it, so K is nothing but H plus ion concentration into alpha, ठीक है? या फिर अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, K डिवाइड बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कहाँ से मिल रहा है ये वाला फॉर्मूला, अभी हमने K2 वाला जो फॉर्मूला देखा था उससे ये मैच कर रहा है, राइट? दैट इज K2 डिवाइड बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो फिर से यहाँ अप्रोक्सीमेशन होगा, कंडीशन, ठीक है? If C1 is greater than C2, अगर कंसंट्रेशन C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है या उसके अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो क्या होगा, तो C1 विल बी मच मच ग्रेटर देन C2 अल्फा, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी कम है। तो अगर ये कंसंट्रेशन, जैसे मान लो ये टेंस टू पावर -1 लिखा है, ये टेंस टू पावर -1 लिखा हुआ है ना, बट यहाँ अल्फा आया लेट्स से टेंस टू पावर -3, तो दिस कैन बी नेग्लेक्ट इन कंपैरिजन टू दिस, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्टली C1 आ जाएगी, pH निकालना बहुत आसान हो गया, हेंस H plus ion concentration is nothing but C1, है ना? We can write C1 plus C2 alpha that we are writing as C1, ठीक है? तो pH डायरेक्टली निकल जाएगा, if है ना C1 is less than C2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, then we cannot neglect maybe
ये इसके अप्रोक्सीमेट आ जाए देन वी हैव टू चेक, राइट। तो कुछ पहले चेक कैसे करेंगे, ये मान लेंगे कि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. So we will say hence H plus ion concentration is nothing but C1 plus C2 alpha. Put the value over here, then you will get a quadratic. So hence K equals to C1 plus C2 alpha into alpha. That is nothing but C2 alpha square plus C1 alpha minus K equals to 0. Solve quadratic. है ना, अल्फा इज गोइंग टू बी, अल्फा क्या हो जाएगा माइनस C1 प्लस B स्क्वायर, सो C1 स्क्वायर प्लस 4K C2 डिवाइड बाई 2C2. अल्फा निकालो, इसमें डालो आंसर. समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर अल्फा बहुत लेस है ना, तो C2 अल्फा विल बी ऑल्सो लेस, यस. बट मान लो हमें ये नहीं पता ना, जैसे मान लो ये लिखा है टेंस टू पावर -5, रिटन एज टेंस टू पावर -2, लेट्स से, जस्ट अज्यूम. ठीक है, तो फिर कैन वी नेग्लेक्ट C2 अल्फा है ना इसके कंपैरिजन में? नो, वी कैन नॉट, राइट. फॉर दैट वी आर सेइंग अगर मान लो ऐसा कुछ है, राइट, अगर ये बराबर तक है, थोड़ा बहुत भी अगर मान लो थोड़ा बहुत भी कम है तो एक बार को ठीक है हम मान लेंगे, लेकिन ये काफी सिग्निफिकेंटली कम है ना. ऐसे इसको और अगर आपको करना है तो आप ऐसे लिख लो, है ना, C1 इज मच लेस देन C2, है ना, देन इट इज गोइंग टू गिव यू लिटिल बिट मोर क्लैरिटी. सुनना, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो लिख लो, क्वेश्चन दे दो.
ठीक है, पहला तो आंसर ऑब्वियसली बहुत आसान है, so that is 10 to power -2, तो pH 2 हो जाएगा, and in this case you have to check actually. ठीक है, pH 1.3, नहीं सेकंड का आंसर सही नहीं है। चलो मैं करता हूँ, तुम्हें इन लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आ रहा। 3.3. Okay, one answer I got 3.3. I think 3.3 is right. Hmm, 3.3 आ रहा है काफी लोग। चलो तो बी का आंसर 3.3 है। फर्स्ट तो आपको समझ में ही आ रहा है, फर्स्ट में कुछ नहीं है, राइट? So in first A, C1 is much greater than C2. H plus ion की concentration C1 के बराबर ही हो जाएगी, which is 10 to the power -2. pH is nothing but B. अब B में क्या होगा, यहाँ पे A equals to आपको लिखना पड़ेगा C1 plus C2 alpha into alpha. Put the value 2 into 10 to the power -5. C1 is 10 to the power -4. So 10 to the power -4 alpha plus 10 to the power -2 alpha square. ठीक है, so let's say 10 to the power -2 हटा देते हैं, then we will write alpha square plus 10 to the power -2 alpha minus 2 into 10 to the power -3 equals to 0. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -10 to the power -2 plus b square 10 to the power -4 plus 4ac, so this is going to be 8 into 10 to the power -3 divide by 2. अल्फा कितना हो जाएगा, -10 to the power -2 plus को 80 into 10 to the power -4 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 into 10 to the power -4, 10 to the power -4 कॉमन लेंगे तो ये 80 plus 1 81 हो जाएगा, so this is root 81 into 10 to the power -4 divided by 2. Alpha will be -10 to the power -2 plus 9 into 10 to the power -2 divided by 2, or you can say 4 into 10 to the power -2. So you can see alpha is less than 0.1. We can ignore it, है ना, वो जो एक्सप्रेशन था, राइट? नाउ वी कैन राइट, ठीक है, तो अल्फा आपको पता चल गया, देन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो गई C1 प्लस C2 अल्फा। C1 हो जाएगा 10 to the power -4, C2 हो जाएगा 10 to the power -2 into 4 into 10 to the power -2, so that is nothing but 5 into 10 to the power -4. pH कितना हो जाएगा, pH is minus log 5 minus log 10 to the power -4, so that is -0.7 plus 4, 3.3. ठीक है, लिख लो इसको। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी?
ठीक है, डन। पार्ट ए में तो बस कुछ नहीं, हमने टेस्ट हुआ -2 लिखा है, pH = 2। You can start solving questions for ionic equilibrium, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप कहाँ तक जा सकते हो, 60 तक जा सकते हो, बट आई विल गिव यू 30 क्वेश्चंस। सिंपल है। I think solve first 37 question which is based on conjugate acid and base, all those things, ठीक है। फर्स्ट 37 क्वेश्चंस आपको फाउंडेशन बिल्डर में करने हैं, ठीक है, और आप लोग 60 तक कर सकते हो। चलो now next is अगर we are going to take mixture of 2 weak acids, ऑब्जेक्टिव ही करने हैं, ठीक है। इसके डिस्कशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक कि तुम्हें बहुत सारे डाउट आएंगे, और अब टाइम आ गया है कि आप में से काफी सारे लोग सिली डाउट्स पूछना थोड़ा कम करो, है ना, क्योंकि मैं जब डिस्कशन कराता हूँ आप सभी पूछ लेते हो, तो ये टाइम आ गया है कि थोड़े कम क्वेश्चंस पूछोगे तो अच्छा रहेगा। वी विल बी कवरिंग मोर एनीवे। So let's say next is 7th, mixture of 2 weak acids. So let's say we are saying example, let's say CH3COOH plus HCOOH kind of, है ना, ऐसा कुछ भी होगा, etc. HCN plus let's say HOCl, ऐसा कुछ, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, etc. कोई 2 वीक एसिड आपने ले लिए। पॉलीप्रोटिक मान लो HCN plus H2S लिख दिया, तो पॉलीप्रोटिक में K1 ही लेना है, ठीक है। सो अभी हम समझ चुके हैं पॉलीप्रोटिक एसिड में बस फर्स्ट K का ही यूज है, राइट। तो ऐसा कोई भी एसिड आएगा तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो लेट्स से आई विल टेक दिस एग्जांपल। So there will be 2 equilibrium. There will be 2 equilibrium like we have done earlier, है ना। ठीक है, let's say the concentrations are C1 and C2, let's say over here, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, right, this is C1, this is C2, let's say at t equals to 0 what will happen, C1 0, एक का इक्विलिब्रियम बना लेते हैं पहले, C1 minus C1 alpha 1, C1 alpha 1, C1 alpha 1, यहाँ पे क्या होगा, C2, this is going to be C1 alpha 1 0, C2 minus C2 alpha 2, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, और ये C2 alpha 2, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लो C2। अब what will be the K1 and K2, जैसे इसका
dissociation constant K1 है, इसका K2 है. So we can say K1 is nothing but H plus ion concentration divided by CS3COO minus ion concentration divided by CS3COOH. So we can write, which is nothing but K1 is nothing but, let's say H plus को यहीं पे लिख रहे हैं, है ना ऐसा. CS3COO minus is C1 alpha 1 divided by this can be written as C1 1 minus alpha 1, or we can neglect alpha 1, है ना. ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इन दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होंगे. सो आई एम जस्ट राइटिंग, अभी तो लिख रहा हूँ ऐसे, फिर देन आई एम सेइंग कि 1 minus alpha 1 is approximately 1. so this is nothing but, ये क्या हो जाएगा, H plus, ठीक है, C1 कट जाएगा, alpha 1. Similarly K2 is nothing but H plus ion concentration HCOO minus ion concentration divided by HCOOH. So H plus ion concentration C2 alpha 2 C2 1 minus alpha 2. So C2 कट हो गया, यहाँ 1 minus alpha 2 can also be written as 1. ठीक है, K2 क्या हो जाएगा, H plus alpha 2. So this is, let's say, equation 1. The equation 2. तो क्या पता चला, from equation 1 and 2, K1 by K2 is nothing but alpha 1 by alpha 2. बस अब इससे अल्फा 1 की मान लो वैल्यू निकाल लो, या अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लो, तो निकाल लेते हैं. अच्छा, अल्फा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1 by K2, सॉरी अल्फा 2 इक्वल्स टू अपोजिट K2 by K1 into alpha 1, है ना. ये तो जाएगा, ये तो चला जाएगा. So let's put this value into equation 1. ठीक है, लो लिख लो पहले याद है, चलो. Okay, done. So let's put alpha 2 value in equation 1. That is nothing but K1 equals to H plus ion की value है C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into alpha 1. So K1 C1 alpha 1 plus C2. What is alpha 2? K2 by K1 into alpha 1. So K2 by K1 into alpha 1.
इंटू अल्फा वन। तो अल्फा वन को बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी K1 और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी C1 C1 K1 प्लस ये आ जाएगा C2 K2 डिवाइड बाई K1 अल्फा वन स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं, ये जाएगा अल्फा वन स्क्वायर इज नथिंग बट K1 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 K1 plus C2 K2. So we can write hence alpha 1 is nothing but K1 divided by root C1 K1 plus C2 K2. Now alpha 1 to चल गया, hence similarly alpha 2 which is K2 by K1 into alpha 1. So we can say alpha 1 की वैल्यू डाल दोगे तो ये कट जाएगा बस K1, तो ये आ जाएगा alpha 2 is nothing but K2 divided by root C1 K1 plus C2 K2. फिर से सुन लो क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे H प्लस की वैल्यू लिख दी है ना। व्हाट इज H प्लस कंसंट्रेशन? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, जो हमने यहाँ लिखा था, है ना। ये यहाँ पे जो H प्लस लिख रहे थे बस वो वैल्यू डाल दी, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ऑलरेडी अल्फा 1 यहाँ पे था, बस यही हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे अल्फा 1 की वैल्यू निकाली, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू डाल दी, फिर इससे अल्फा 1 की वैल्यू निकल गई, अल्फा 1 की वैल्यू निकल गई, अल्फा 2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। So what is H plus ion concentration? That is nothing but C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. Put the value of alpha 1 and alpha 2. तो ये क्या हो जाएगा K1 C1 divide by root K1 C1 plus K2 C2 plus यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 C2 divide by all this root which is common K1 C1 plus K2 C2। तो ये क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा K1 C1 plus K2 C2 डिवाइड बाय रूट K1 C1 plus K2 C2। अब ये कट जाएगा, दोनों सेम है तो रूट ऊपर आ जाएगा। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, रूट K1 C1 plus K2 C2। सिंपल है, K इंटू सी हमें पता है, दो वीक एसिड आएंगे तो क्या हो जाएगा K1 C1 plus K2 C2, ठीक है, दो वीक एसिड में बस सिंपल फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ रूट K1 C1 क्या होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। So this is with the consistence, let's say formula। आप अल्फा 1 और अल्फा 2 की बातें निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये हमें पता चल गया, अल्फा 1 क्या हो गया यहाँ पे K1 by H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये भी फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। अल्फा 2 क्या हो जाएगा K2 by H plus ion concentration। So all these cases are effectively having only one formula, that is root K dot C, ठीक है। वीक एसिड आ जाएगा तो सॉरी पॉलीप्रोटिक आ जाएगा तो K1 डॉट C। अगर दो मिक्सचर ऑफ दो वीक एसिड आ जाएंगे तो रूट K1 C1 प्लस K2 C2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो ये बात जितने लोगों को समझ में आ गई है ना, कितने लोगों को इतना तक समझ में आ गया? देखिए कितने लोग जग रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, हाथ उठाओ, कितने लोग प्रेजेंट हैं, हाथ उठाओ। देखो बाकी ये गायब है। 53 students are there, 54, 89।
हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूँ ना, कैलकुलेशन है, केसेस हैं, बट व्हाट इज द लेट्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू वांट टू रिमेम्बर, वो है फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली वो यही पूछेंगे बताओ पीएच क्या होगा। अभी देखो हमने कैसे केसेस किए, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड किया, फिर हमने वीक एसिड लिया, ठीक है, वीक एसिड में भी मोनोप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एक ही फॉर्मूला आया, राइट। फिर उसके बाद हमने मोनोप्रोटिक को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करा दिया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। फिर हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का एक ले लिया, तो सब पूरा कवर हो गया, पूरा एसिड। और इफेक्टिवली देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है, रूट के डॉट सी, पॉलीप्रोटिक आ जाएगा तो K1.C, राइट। बस ये आपको याद रखना है कि जब दो वीक एसिड आएंगे तो फिर K1C1 प्लस K2C2 ऐसा आ जाएगा। अगर मान लो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस हैं, अगर C1 ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर हाँ you can lower your hands, मैं भी डाल देता हूँ, let's see, lower all hands, but where is the option? दिख नहीं रहा मुझे, okay let's leave it, yes okay मिल गया। क्या कह रहा था मैं, हाँ तो मतलब इसमें बस ये याद रखना है, जब वीक और स्ट्रांग होगा तो C1 अगर ज्यादा है तो C1 के हिसाब से आ जाएगा, C2 वाले केस में बस आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, तो क्वाड्रेटिक आपको वहां सॉल्व करनी है जहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर पा रहे हो, वहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, जहाँ जहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर पा रहे हो वहां पे फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। तो लेट्स से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, इसका यहाँ पे ये आपका वीक एसिड वीक बेस के सबके पीएच हो गए। नेक्स्ट में हम मिक्स करेंगे एसिड और बेस, तो बनेगा सॉल्ट, ठीक है। अभी हमने एसिड एसिड को मिक्स किया, बेस बेस को मिक्स किया, अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और बफर, वो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रुक जाओ। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर लिख लेना, ठीक है। कैलकुलेट pH of solution obtained by mixing equal volume of 0.02 molar HOCl and 0.2 molar CH3COOH solution. K of HOCl is 2 into 10 to the power minus 4. K of CH3COOH is 2 into 10 to the power minus 5. So बताओ भाई क्या आएगा इसका, ठीक है। इसमें एक की पॉइंट है, ठीक है, वो देखते हैं कितने लोग इसमें उसको पकड़ पाते हैं। 0.02 molar HOCl and 0.2 molar CH3COOH solution K दे रखा है।
हो गया, डन। होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास इज क्वेश्चन नंबर 1 to 37 इन फाउंडेशन बिल्डर, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम होगा तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, दिस इज द ट्रिक। मेरे को पता है किसी ने ये ध्यान नहीं दिया है ना, जिसने दिया है आंसर मुझे मिले नहीं है वैसे जो आने चाहिए। नो, आई विल नॉट सेंड द पीडीएफ, ठीक है, चेक द वीडियो। तो देखो, अगर मान लो मैं बोलूं, लेट्स से इमेजिन कि यहाँ पे 1 लीटर है ये, और इसका ये 0.02 मोलर सॉल्यूशन है, इसमें मैंने 1 लीटर और डाल दिया, मान लो 0.2 मोलर का CH3COOH डाला, तो टोटल वॉल्यूम तो 2 लीटर हो गया ना। यहाँ पे मोल्स कितने थे, 1 लीटर के हिसाब से थे, 0.02 into 1। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0.02 डिवाइड बाय 2, राइट। तो जब भी कभी इक्वल वॉल्यूम्स हम ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ। सुनना, बस इतना ही करना था, ठीक है, राइट। यहाँ पे सोल्यूट HCOOH जो भी है, ये HOCl कितना है, 0.02 मोलर, तो उसके में मोल्स कितने हो गए, 0.02 into 1 लीटर, है ना। यहाँ पे कितने हो जाएंगे इस फाइनल सॉल्यूशन में, 0.02 divided by total volume, that is 2, so 0.01, right? So the concentration is going to be half. So you can write as a notes in your language कि जब भी equal volume होगा तो final concentration is going to be half of the, है ना, initial concentration. Solution you can write, है ना, because we are mixing equal volume. Concentration of HOCl क्या हो जाएगी, 0.02 divided by 2, so 0.01, so that is C1. And concentration of CH3COOH is going to be 0.2 divided by 2, that is 0.1, that is C2. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, H plus ion concentration is root K1 C1 plus K2 C2. So that is going to be, अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 10 to the minus 4 into 10 to the minus 2 plus 2 into 10 to the minus 5 into 10 to the minus 1. That is nothing but 4 into 10 to the minus 6, which is 2 into 10 to the minus 3. तो pH हो जाएगा आपका 2.7। किसी का 2.7 आया pH, ठीक है। इसी मेथड से किया है ना जिन लोगों का, अभी मुझे दिख तो नहीं रहे हैं ऐसे 2.7 वाले, अब आया है ना, ठीक है, पहले नहीं आया था ना, ये आपने नहीं किया था, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो ये ट्रिकी पॉइंट है, ऐसे याद रखना है, राइट। अब इसमें अगर मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 निकालना हो तो अल्फा 1 कितना हो जाएगा, K1 by H plus ion concentration. So K1 is going to be 2 into 10 to the minus 5 divided by 2 into 10 to the minus 3, which is 0.01. अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 2 into 10 to the minus 4 divided by 2 into 10 to the minus 3, which is 0.1, ठीक है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 आ गए, सॉरी ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, ठीक है, ये HOCl के लिए। ओके, दैट्स इट, आज के लिए आज कितना काफी है, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इससे पहले हम वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहे थे,
हम सीधे फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला 0.1 मोलर प्लस 0.2 मोलर, तो हमने वॉल्यूम नहीं दे रखा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में है, वो फाइनल सॉल्यूशन में है, फाइनल कंसंट्रेशन। अगर हमने लिखा होता 200 ml 0.1 मोलर, तब हम सोचते है ना कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। सो इट्स अ गुड पॉइंट सुशील। कभी ऐसा दे रखा होगा, मान लो 400 ml of 0.1 molar HCl and 200 ml of 0.01 molar of CH3COOH, ऐसा होगा तो फिर आपको फाइनल सॉल्यूशन में C1 निकालना पड़ेगा। ये 0.1 मोलर इज नॉट C1, ठीक है। हमें हमेशा फाइनल में देखना है ना, पीएच किसका निकालना है, फाइनल का। जब इन्होंने वॉल्यूम नहीं दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि वो फाइनल की ही कंसंट्रेशन दे रखी है। जब वॉल्यूम दे रखा होगा तो देन यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो उन्होंने फाइनल में ही कंसंट्रेशन दे रखी है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो आपको फिर से निकालना है कि वो कंसंट्रेशन क्या होगी, या ऐसा कुछ टर्म दे रखा है इक्वल मिक्सिंग वगैरह, है ना, इक्वल वॉल्यूम वी हैव मिक्स्ड, देन यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ओके, विल सी यू टुमारो। यस, बाय।